Morning all of you. Beta, welcome to राष्ट्रीय ग्लोबल ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब के इस चैनल पे हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर्स कंटिन्यू है हमारा, जिसमें एक्सरसाइज 11.5 और बेटा कंटिन्यू चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 से पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है पार्ट 9 तक हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें पार्ट 9 में जो है 11.5 का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कवर किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, dy dx इज इक्वल टू y by x प्लस टेंजेंट y by x। तो बेटा सबसे पहले ये होमोजेनियस इक्वेशन किस तरह से है, क्या इसमें, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम चेक करते थे ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती थी तब लिखते थे इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। बट इसमें केवल एक ही फॉर्मेट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इसमें y by x फॉर्मेट में, क्योंकि फंक्शन अगर y by x है तो भी वो ज़रा होमोजेनियस होता है, तो y by x में है ये फंक्शन, तो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। और उसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो ये होता है, y की जगह bx पुट करते हैं, b की वैल्यू y by x। तो बेटा dy dx इज व्हाट, dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv dx। तो बेटा ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, v प्लस x dv dx दैट इज इक्वल टू y by x, तो y की जगह bx पुट करना है ओवर x प्लस टेंजेंट vx over x to x cancel, then what remaining, x dv dx is equal to v plus tangent v to v also cancel, then what is the remaining, dv over dx, x dv dx is equal to tangent v। तो बेटा वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें v dv लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, dv over tangent v and dx over x, 1 by tangent बेटा cot होता है, cot v dv that is equal to dx over x। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए तो बेटा इसमें इंटीग्रेटिंग बहुत सारे जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ cot v dv दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। तो फिर cot v का जो इंटीग्रेशन है वो जाएगा बेटा log sin v एंड here is log x एंड प्लस log c, log sin v as it is, यहाँ बेटा n by n का रूल अप्लाई हो गया, log x c, log to log cancel, sin v is equal to x c, put the value of value of v is y by x, then you write here sin y by x is equal to x। It is the solution of this homogeneous equation। ठीक है बेटा। 20 के बाद बेटा 21 और 22 बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन है जैसे 20 नंबर क्वेश्चन था, आप उसको सैटिस्फाई करेंगे। Then after that question number 23, we find the value of dy dx that is equal to y into log y minus log x plus 1 over x। The degree of numerator is 1, denominator is 1, it is homogeneous equation। पुट करेंगे बेटा इसमें, पुट y is equal to vx and what is the value of v is equal to y by x and dy dx is equal to v plus x dv dx। Put the value of dy dx is there, v plus x dv dx and value of y is there, vx into log vx minus log x plus 1 over x, x to x cancel, v plus x dv dx v into, बेटा यहाँ एक रूल लगेंगे log n into n, what is its calculation, log v plus log x and log x plus 1, log x to log x cancel, then what we find here, x dv v plus x dv dx is equal to v log v and plus v
v to v cancel, then x dv dx is what? X dv dx is equal to log v log v. After that वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग बेटा v log v dv की तरफ लेके आएंगे और बेटा x dx राइट साइड में ले जाएंगे। तो कैसे लिखते हैं इसको? dv over v log v is equal to dx over x. Then बेटा integrating both sides. Integration of dv over v log v is equal to integration of dx over x. Here also put beta log v is equal to t. Then 1 by v dv is equal to dt. Then what we find here? 1 by v dv is dt. Then dt over log v is t is equal to dx over x. Integration of its log t, here is log x and log c, and log t is what? Log t is equal to log xc. Log to log cancel. Then value of t is what? Well, value of t is log v, and here is x. What is the value of v? V is y by x. Then what we write here? Log y by x is equal to log c into 1. क्योंकि बेटा इस log को कैंसिल करना है तो अब यहाँ 1 लिखिए और इसको log में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप लिखेंगे 1 बेटा होता है आपके पास log e, and this value is transferred in degree. Log y by x is equal to log e raised to power xc. Log to log cancel. Then y is what? X e raised to power xc. It is the solution of this difference. ठीक है बेटा? तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट बेटा क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज x cos y by x plus y sin y by x into y is equal to minus y sin y by x minus x cos y by x dy dx is equal to 0. First of all, you find the value of dy dx. And what is the value of dy dx is equal to this value transfer in right side, x cos y by x plus y sin y by x into y over minus y sin y by x plus x cos y by x into x. This is transferred to right hand minus and it is multiplied, so it comes in denominator. Minus to minus cancel. Degree of it is the format of y by x. Also degree of numerator is 2 and denominator is also 2. तो बेटा इसमें दोनों तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो it is homogeneous equation. इसमें पुट करेंगे बेटा, पुट y is equal to vx and v is equal to y by x and dy dx is what? dy dx is equal to v plus x dv over dx. Then what changing here? We put the value of dy dx v plus x dv dx, that is equal to put the value of y. जहाँ जहाँ बेटा y है वहाँ vx पुट करना है, तो न्यूमरेटर x cos vx और x प्लस vx sin vx over x. Again y dx, and in denominator y is vx and then sin vx over x, x cos vx over x and into x. But x to x cancel, here is also cancel, x to x cancel. Clear? We taking common x in numerator
and x in denominator. What we find? Vx dv dx, that is equal to x common. Then what is remaining here? Cos v plus v sin v, and in denominator x is common, v sin v and minus cos v, x to x also. This v transfer in right hand side, then what is that? X dv dx, that is equal to cos v plus v sin v over v sin v minus cos v और क्लियर बेटा? x dv dx is equal to v sin v minus cos v is LCM. Then what find here? Cos v, v sin v minus v square sin v and v cos v. बेटा इसमें यहाँ पे ये जो v है ना, ये इंटू v न्यूमरेटर में बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे इंटू v से मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो v स्क्वायर v कोस, माइनस के बाद जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ प्लस, तो v स्क्वायर कैंसिल हो गया और बेटा ये इसके साथ ऐड हो गया, तो v x dv dx इज इक्वल टू 2v cos v ओवर v sin v माइनस cos, ठीक है। एक बार फिर से देखिए बेटा, हमने ये जो पुट किया है यहाँ पे vx, x से x कैंसिल, ये v बचा हुआ है, अंदर हमने x को कॉमन ले लिया इंटू v, इसकी मल्टीप्लाई की और एलसीएम ले लिया, v sin v cos v एलसीएम आ गया, ये v से मल्टीप्लाई होगा, माइनस v है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, v की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, v cos v 2v cos v। आफ्टर दैट बेटा इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, नीचे आ जाएगा, तो आपके पास आ गया dv v sin v माइनस cos v ओवर v cos v d, और इधर बच गया बेटा 2 dx ओवर x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बेटा इंटीग्रेशन इसका सेपरेबल कर लीजिए। फर्स्ट टर्म में लिखेंगे v sin v ओवर v cos v dv, माइनस सेकंड में cos v ओवर v cos v और dv इज इक्वल टू 2 dx ओवर x, ये कैंसिल, v कैंसिल, यहाँ बेटा टेंजेंट बच गया जिसका इंटीग्रेशन माइनस log cos v, यहाँ माइनस log v, यहाँ 2 log x एंड प्लस log c, तो माइनस को आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, log v cos v, उधर बेटा माइनस ये पावर 2 उसमें ले जाएंगे पावर में, तो log x स्क्वायर इंटू c, इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए या तो आप इस माइनस को उधर लीजिए या फिर बेटा इसको जो है पावर में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया log 1/v cos v is equal to log x square c, log to log x. Then put the value of v is y by x. What we find here? 1/y by x cos y by x is equal to x square c, x upon y cos is equal to x square c, 1x is cancelled with x, then y cos y by x is equal to, बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से,
एक्स स्क्वायर सी 1x कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू cos y बाई एक्स ओवर 1 ओवर x। ठीक है, थोड़ा चेंज और कर लीजिए, x को आप इधर लीजिए तो एक्स वाई cos y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी आप 1 बाई सी लिखे या सी लिखे, कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपके आंसर में अगर ये यू लिखा हुआ है इज इक्वल टू सी तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस log सी की जगह माइनस log सी रखते थे एक्स बाई सी बेटा आ जाएगा तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट में माइनस आए या वन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 25 नंबर, dy dx फाइंड आउट करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन है, y की जगह bx पुट करेंगे, dy dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आपके पास ये बचता है v dv सेम साइड, x dx दूसरी साइड ले जाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन में ये टर्म्स बनती हैं, ये टेंजेंट बनता है टेन या फिर इसमें बेटा cos x को जो है t पुट करके कर ले या टेंजेंट से कर ले, किसी भी तरह कर ले तो माइनस log cos v आ गया, cos v आ गया और ये पॉजिटिव टर्म है तो इसमें आपको जो है ना पावर में ले जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का रूल लगा दिया और कंप्लीटली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाए आपके पास। आप इस x को कैंसिल करके और इस x को आप इधर ले आएंगे तो ये टर्म आपके पास बचती है इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको c लिख के या 1 बाई सी लिख के उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, ये भी इसका आंसर लाइन है और ये भी